Dear students, as we know that different school use different publications book, but we all are aware of the importance of NCERT book. So in this class, we are going to discuss the contents of the NCERT history class 6 chapter 1, and it is introduction, what, where, how and when. बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग स्कूल्स जो है ना अपने यहाँ अलग अलग तरह की किताबों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम सभी एनसीईआरटी के महत्व को समझते हैं। एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो प्रमाणित माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है। सो इस क्लास में हम एनसीईआरटी के तथ्यों को बिल्कुल ही बारीकी से, संजीदगी से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज Rasida's question. Rasida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headlines 100 years ago. How, she wondered, could anyone know about what had happened so many years? रसीदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उस समय उसका ध्यान एक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पर जाता है और उसमें लिखा है 100 years ago, किसी घटना के बारे में जो 100 वर्ष पहले की है। और वो आश्चर्यचकित होती है कि 100 वर्ष पहले की घटना को कोई कैसे जान सकता है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। yesterday you could listen to the radio, watch television, read newspaper. Last year, ask someone who remembers. But what about long ago? Let's see how it can be done. तो अतीत के चीज़ों को हम कैसे पता लगाते हैं, कल क्या हुआ, इसके लिए हम लोग रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पता लग जाता है। 1 वर्ष पहले क्या घटित हुआ ये जानने के लिए उस समय जो व्यक्ति इन चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है उनके सहायता से हम जान सकते हैं। लेकिन सैकड़ों वर्ष पहले क्या हुआ, हजारों वर्ष पहले क्या हुआ, ये हम कैसे जानेंगे। What can we know about the past? और क्या क्या हम जान सकेंगे, पास्ट के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। There are several things we can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. बरसों पहले के लोगों के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि वो किस प्रकार का भोजन करते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, किस प्रकार के घर में वो रहते थे। उस समय, उस कालखंड में हंटर्स का, हर्डर्स का, फार्मर्स का, रूलर्स का, मर्चेंट्स का, प्रीस्ट का, क्राफ्ट पर्सन और आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट्स, इन लोगों के जीवन कैसे थे। और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस कालखंड में बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कैसी कहानियाँ सुनते थे, क्या देखना पसंद करते थे और कौन से गीत गाते थे। Where did people live? It's very important. Find the river Narmada on map 1, page 2. People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. That is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surroundings forest and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. They also hunted animals. Now, find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle and lived in villages. Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyan in the central India. These were some of the other areas where agriculture developed. These places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas.
तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस मैप का अध्ययन करते हैं तो इस मैप में हम देखते हैं, आप देखेंगे कि नर्मदा वैली को हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। नर्मदा वैली में अर्ली ह्यूमन्स के रहने का प्रमाण मिला है। नर्मदा वैली में जो अर्ली ह्यूमन्स रहते थे वो गैदरर्स थे। गैदरर्स क्या होता है? गैदरर्स अर्थात चीज़ों को चुनने वाला, इकट्ठा करने वाला, अर्थात संग्राहक। और हंटर्स भी थे, अर्थात वो शिकारी थे। यानी उन आसपास के, नर्मदा वैली के आसपास के जंगलों से वो जो प्लांट्स प्रोड्यूस था, रूट्स था, उसमें फ्रूट्स था, जो भी चीज़ें था, उनको इकट्ठा करके चुनते थे और उनमें खाने योग्य चीज़ों का संग्रहण करते थे और खाते थे। और इन जंगलों से एनिमल्स का शिकार भी वो करते थे। तो नर्मदा वैली में रहने वाले लोग जो थे वो हंटर्स थे और गैदरर्स थे, अर्थात शिकारी थे और चीज़ों को इकट्ठा करने वाले अर्थात संग्राहक थे। लेकिन इसके बाद जब हम इस मैप को, यानी भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मैप को देखते हैं और उसके नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो हम यहाँ किरथर और सुलेमान हिल्स देखते हैं। तो इन किरथर और सुलेमान हिल्स में जो अर्ली ह्यूमन्स के बारे में लगभग 8000 ईयर्स एगो वहाँ पर जो लोग रहते थे वो व्हीट और बार्ली अर्थात गेहूं और जौ को उगाते थे और साथ ही साथ पशुओं का पशुपालन भी करते थे, अर्थात पशुओं को पालते थे। तो हमने देखा कि नर्मदा वैली में जो लोग रह रहे थे वो मूलतः गैदरर्स और हंटर्स थे, अर्थात संग्राहक थे, चीज़ों को चुन रहे थे, कौन खाने लायक है, कौन खाने लायक नहीं है। और हंटर्स अर्थात जानवरों का शिकार कर रहे थे। लेकिन आज से 8000 वर्ष पहले जो किरथर और सुलेमान हिल्स की जो घाटी में वहाँ पर जो लोग बसे थे वो फार्मर्स थे, अर्थात गेहूं और जौ को उगाते थे और हंटिंग के बजाय, जानवरों को मारने के बजाय अब वो लोग रियरिंग कर रहे थे, अर्थात पालन कर रहे थे। पशुपालन से भी वो लोग परिचित हो चुके थे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम समझ रहे हैं कि चीज़ आपको आसानी से समझ में आ रही होगी और हम लाइन बाय लाइन एक एक तथ्यों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। नाउ ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब कहता है कि आप मैप पर इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों को देखिए। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर about 4700 years ago. Some of the earliest cities flourished in the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. अब आपको, आप मैप में देखिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को आप देख सकते हैं। अब जब मैप में सिंधु और सहायक नदियों को देखने का प्रयास करेंगे तो मैं भी यहाँ इस मोबाइल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये जो हाईलाइटेड है ये इंडस रिवर, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंडस रिवर है और इंडस के साथ साथ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब उनकी सहायक नदियाँ हैं। तो इन क्षेत्रों में इंडस रिवर और उनके सहायक नदियों के क्षेत्रों में साथियों आप बताना चाहेंगे ट्रिब्यूटरीज जो रिवर होता है उसको भी समझने की कोशिश करें। ट्रिब्यूटरीज वो छोटी छोटी नदियाँ होती है जो बड़ी नदियाँ में आकर मिलती हैं। तो जो छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदियाँ में मिलती है वो नदियाँ उस बड़ी नदियाँ की ट्रिब्यूटरीज अर्थात सहायक नदी कहलाती है। तो इंडस रिवर, इंडस की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब सिंधु की अर्थात इंडस की सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है। तो इन सिंधु और उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र में जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अगर कहा जाए, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहा जाए, तो इन्हीं क्षेत्रों में पहली बार जो सिटी सिविलाइजेशन, बड़े बड़े जो नगर का विकास हुआ। और ये सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप अगली क्लास में जानेंगे। ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में फ्लोरिस्ट होने वाले, फलित होने वाले, विकसित होने वाले पहली नगरीय सभ्यता थी, सिटी सिविलाइजेशन थी। और गंगा और उसकी सहायक नदियों की बात करें तो गंगा और उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले ही बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। और समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र है
यानी जो सी कोस्ट हैं, इन क्षेत्र में भी आज से लगभग 2500 वर्ष पहले नगरों का विकास हुआ। नाउ लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। गंगा और इसकी सहायक नदियां आप मैप में देख सकते हैं। गंगा और इसकी सहायक नदियां जो है सोन, गंगा और उसकी एक मुख्य सहायक नदी है सोन, इसके बारे में आपको कहा जा रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ गंगा और इसकी एक सहायक नदियां हैं सोन, और गंगा और उसकी सहायक नदियां यानी गंगा के सदर्न हिस्से का जो एरिया है उसकी बात कर रहा है। उसके जो क्षेत्र बन रहा है गंगा और इसकी सहायक नदी सोन वाला जो क्षेत्र बन रहा है उसको प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में गंगा और उसकी सहायक नदियों को मगध के नाम से जाना जाता था। हम डिस्कस करेंगे। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to the another part. The hills and the high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at that time, but never impossible. So men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disasters like flood or droughts. Sometimes men marched in the armies, conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships, carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventurous, wanting to discover new and existing places. All these led to the sharing of ideas between people. साथियों, जब इन तथ्यों को हम समझने की कोशिश करते हैं तो गंगा और उसकी सहायक नदियां जो है सोन, गंगा और उसकी सहायक नदी सोन, इसके क्षेत्र में जो गंगा के दक्षिणी हिस्से में जो एक बृहत जो साम्राज्य फला फूला उसका नाम था मगध, और जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हुए और बड़ी बड़ी शक्तिशाली राजधानियाँ भी बनी, और मगध में ही नहीं बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी ऐसे बड़े बड़े राज्य थे, बड़े बड़े किंगडम्स थे। इसके अतिरिक्त पुराने ज़माने में ये एंशिएंट टाइम में पीपुल सब कंटिनेंट के अर्थात भारतीय महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कोई भोजन की तलाश में, तो कोई सेना युद्ध के उद्देश्य से, धार्मिक गुरु धर्म प्रचार के उद्देश्य से इत्यादि उद्देश्य से वो सब कंटिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। और ये यात्रा काफ़ी कठिन था क्योंकि उसमें बड़े बड़े हिमालयाज भी रास्ते में, जो इतने बड़े हिमालय है, डेजर्ट्स हैं, रिवर्स है, और भी बहुत सारे यानी पर्वत, पहाड़ियाँ, मरुस्थल, इन सभी से उन लोगों का सामना होता था। इसके बावजूद भी वो लोग यात्रा करते थे, और इस यात्रा से क्या हुआ कि एक दूसरे को समझने में उनको मदद मिला, और एक दूसरे की सभ्यता जो है वो समृद्ध हुई, और एक दूसरे के आइडिया को, विचारों को समझकर आगे बढ़ा। इससे मानव सभ्यता को विकसित होने में मदद मिली। नाउ व्हाई डू पीपल ट्रेवल्ड नाउ एडेज। अब क्वेश्चन है, एक पूछ रहा है कि आज भी लोग ट्रेवल करते हैं, क्यों करते हैं। अब सभी जानते हैं आज भी कोई काम की तलाश में, विभिन्न उद्देश्य से, रोजी रोजगार की तलाश में, अलग अलग उद्देश्यों से लोग यात्राएं करते हैं। इसी तरह पुराने समय में एंशिएंट टाइम में भी लोग इस सब कंटिनेंट में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रेवल करते थे। सेना युद्ध के उद्देश्य से करते थे, कुछ लोग रोजगार के उद्देश्य से करते थे, कुछ लोग जो प्राकृतिक आपदाएं एक स्थान पर आ गई तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान करते थे। फिर कुछ लोग चारागाह की खोज में, पशुओं के चारा के लिए एक स्थान थे, यानी विभिन्न प्रकार के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग यात्राएं करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम ज़्यादा इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब हम अगले सेशन में इसके अगले हिस्से पर चर्चा करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सब थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल्स को जो सब्सक्राइब कीजिए, कुछ लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों का लाइन बाय लाइन, ईच एंड एवरी लाइन पर डिस्कशन आपके बीच रखूँ, और निश्चित रूप से अगर आप इन तथ्यों को एक दो बार सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका
जो एक बेहतर कंसेप्ट बनेगा, जो क्योंकि ये सभी के लिए लाभदायक हो सकता है। ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स के लाभदायक हो सकता है, और कम्पिटिटिव छात्रों के लिए भी ये लाभदायक हो सकता है, क्योंकि अधिकांश कंपटीशन में हम देखते हैं कि इन्हीं जगहों से बहुत सारे तथ्यों को उठाकर एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाता है। तो साथियों, प्रिय छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, I heartily request you all, please subscribe my channel, like, share and subscribe. Thanks a lot.